توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ محترم حجاج کرام، حاجی صاحبان، الحمدللہ یہ جو سفر ہے زیارات پہ مشتمل ہے، مبارک ترین سفر جو کہ زیارات پہ ہے، اور انشاءاللہ زیارات کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سبھی حاجی صاحبان سے گزارش ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے گا، صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیے گا، صحابیہ کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیے گا۔ بات اچھی لگے تو ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی پڑھیے گا۔ مکہ شہر کی تاریخی حیثیت اور مذہبی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ کے لیے اسی شہر مکہ کو چنا۔ تو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر بھی اسی شہر مکہ کو قرار دیا، اور دنیا کا افضل ترین پانی آب زمزم بھی اسی شہر مکہ سے ہے۔ سب سے خوبصورت ترین بات ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی اسی شہر مکہ میں ہے۔ اسی طرح اس شہر کے کچھ اور تاریخی مقامات بھی ہیں جو اس شہر کی روشنی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، انہی مقامات کی ہم زیارت کریں گے۔ ہماری سب سے پہلی اور آنے والی زیارت ہے جبل سور، غار سور، جو کہ ہجرت نبوی سے منسلک ہے۔ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پیش آئی، کب کرنا پڑی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ کہ ہماری جو پہلی آنے والی زیارت ہے جبل سور، غار سور، جو کہ ہجرت نبوی سے منسلک ہے، یہ ہجرت آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پیش آئی، کب کرنا پڑی، اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہ الحمدللہ ہم سب نے عمرہ کیا ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف کرنے کے بعد جاتے ہیں سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف، صفا پہاڑی، اس جبل صفا پہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کفار مکہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، عرصہ 40 سال میں مجھے کیسا پایا؟ تو سبھی لوگ ایک زبان ہو کر بولے، اے محمد عربی، آپ سچے اور ایماندار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے جو سب کو تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سبھی لوگ ایک زبان ہو کر بولے، اے محمد عربی، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، تو لوگوں پھر پڑھ لو سبھی، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا ہمیں تو اپنی پرانی زندگیاں چھوڑنی پڑیں گی، منمانی والی زندگیاں، عیاشی والی زندگیاں، یہ ساری چھوڑنی پڑیں گی، اور کلمہ حق والی زندگی اپنانی پڑے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت سے صبر و تحمل کے ساتھ دین کی محنت کو جاری رکھا اور دین اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ یثرب میں بھی دین اسلام کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان تو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، طرح طرح کی تکلیفات دینا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے، راستے میں کوڑا کرکٹ گراتے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے لا کر اونٹ کی اوڑی گرا دیتے، طرح طرح کی مشکلات پیدا کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کو جاری رکھا اور دین اسلام پھیلتا گیا۔ تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بہت بڑی میٹنگ بلا لی۔ تو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بہت بڑی میٹنگ بلا لی۔ میٹنگ کے اندر 60 قبیلے ہیں، یہاں پر موجود جو 60 قبیلے مشرکین مکہ کے، ان سب کے سردار اسی میٹنگ میں ہیں، اور میٹنگ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میٹنگ کے اندر سردار ابو جہل کی سربراہی میں ان کی میٹنگ ہے، اور بات کرتے ہیں
ये जो मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, ये मुसलमान रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं, ये तो हम सब पर गालिब आ जाएंगे और हम कुफार यहाँ मक्का से खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इसी मीटिंग के अंदर अबू जहल की सरबराही में इन लोगों ने नौज़ बिल्लाह हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ में मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शोर की आवाज़ सुनते ही बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा कि कुफार का मजमा लगा हुआ है और उनकी जिनकी तलवारें उनके हाथ में है और ये नारे लगा रहे हैं नौज़ बिल्लाह कि आज मोहम्मद अरबी की आखिरी रात है, आज उनकी खैर नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन जालिमों ने, इन बदबख्तों ने तो आपके कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली गम न कर, इन्होंने मंसूबा तो आप बनाया है, बचाने वाला भी रात से पहुंचा हुआ है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से पैगाम ला चुके थे। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का पैगाम दे दिया कि ए नबी अब हिजरत कीजिए मक्का से मदीना की तरफ और अबू बकर को साथ लेकर। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मोहतरम हाजी साहबान, ये जो कुफार मक्का इतनी मुखालफत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी इमानतें रखवाते होते, अपनी दौलत रखवाते होते थे, अपने जेवरात लगते इमानतें रखवाते होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर दी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दे दिया कि अली मेरे बिस्तर पर लेट जा, ये सारी इमानतें लोगों को वापस लौटाकर सुबह तुम भी मदीने की तरफ लौट आना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जो रात थी मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरसकून रात थी। इस रात में सुकून के साथ सोया, इसलिए कि बिस्तर मोहम्मद पे सोया और यकीन इतना था कि आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुबह मदीने लौट कर आना है, आज रात मुझे मौत आ ही नहीं सकती। इस तरह इस यकीन के साथ सोया। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा कि कुफार का मजमा और उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से मिट्टी या कंकर उठाया और उनकी तरफ उछाल दिया और कुरान पाक की आयत पढ़ दी, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में यह तर्जुमा है कि हमने नूर की एक दीवार आगे और एक दीवार पीछे और ऊपर छत बना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नजरों से छुपा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में से गुजरते हुए सीधे बैतुल्लाह खाना काबा तशरीफ ले आए। बैतुल्लाह खाना काबा जो हमने देखा है कि इस तरह बाहर जो हतीम बना हुआ है, वो भी खाना काबा के अंदर वाला हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नवाफिल अदा किए और कहा, ए मक्का तो मुझे बहुत प्यारा है, मेरे अंदर मेरा बचपन भी गुजरा, जवानी भी गुजरी और बुढ़ापे का भी कुछ हिस्सा गुजरा, मगर यहाँ के ये रहने वाले जालिम लोग मुझे रहने नहीं दे रहे, दीन का काम नहीं करने दे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सीधे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ लाए। सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर तो जो कीजिए, हम बाबे फाज जो गेट है ना, खाना काबा का बाबे फाज जो गेट है 79 नंबर है उसका, इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा होटल है शिरका मक्का मिलीनियम होटल। इसकी चौथी मंजिल पर वाक़या है मस्जिद अबू बकर सदीक, जहाँ पर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सीधे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ लाए और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पहले ही इंतजार में थे कि किसी वक्त मुझे हिजरत का हुक्म आ जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला पहले भी रवाना कर दिया था हबशा की तरफ। अब इंतजार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपकी खुशबू से ही पहचान लिया, दरवाजा खटखटाने से पहले ही खोल दिया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने आने की तकलीफ क्यों की, कोई पैगाम भेज दिया होता, कोई गुलाम भेज दिया होता, ये गुलाम खुद चल कर आया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर आज मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ अल्लाह ताला की जानिब से। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अबू बकर को साथ लेकर हिजरत कीजिए मक्का से मदीना की तरफ। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के अमीर ताजर हैं, 40 से ज़्यादा इनकी रेशम की दुकानें हैं। कोई उधर कोई बहाना पेश नहीं किया कि आप या रसूलल्लाह मैं अपने बीवी बच्चों का इंतजाम कर लूँ, या रसूलल्लाह मैं अपने माँ बाप का इंतजाम कर लूँ, माल असबाब का इंतजाम कर लूँ, कोई बहाना पेश नहीं किया। फतेह जज्बात में आकर ये कलमात बयान किए, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ अबू बकर, अल्लाह ताला ने खुद नाम लिया और पैगाम दिया है कि अबू बकर को साथ लेकर हिजरत कीजिए मक्का से मदीना की तरफ। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन साथ रवाना हुए, फौरन। तो जो कीजिए, जिस तरह हमारी गाड़ी गुजर के आई ना, ये शारा इब्राहिम खलील है और इसके साथ वाली जो सड़क है ना दूसरे हाथ से, वो शारा हिजरा है। शारा हिजरा जो हिजरा रोड है ना,
ये हिजरत के नाम से मंसूब है, क्योंकि इस रास्ते से आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हिजरत के सफर का आगाज करते हैं पैदल। तो इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी 2 कदम आगे चले जाते हैं, कभी 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये क्या माजरा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे खदशा है कुफार आपको आगे से हमला न कर दे, मैं 2 कदम आगे आ जाता हूँ। कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कुफार आपको पीछे से हमला न कर दे, मैं 2 कदम पीछे हो जाता हूँ। इसी तरह चलते हुए रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्यों ना उल्टे रास्ते से चले और हम कुछ देर पड़ाव डालकर चले, ताकि इन कुफार की तलाश कुछ कम हो जाए और हमारे सफर में आसानी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा पसंद फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर इसी तरह इसी पहाड़ जबल सौर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हम पहली ज़ियारत करने वाले हैं। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि पहली जो ज़ियारत है जबल सौर, अभी जाएंगे देखेंगे इस पहाड़ की जो ऊंचाई है 5314 फुट ये ऊंचा पहाड़ है। आज का नौजवान भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उसको 2 घंटे ऊपर चढ़ने के लिए दरकार है, 2 घंटे नीचे उतरने के लिए दरकार है, और थक कर चूर हो जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 51 वर्ष की उम्र है। 51 वर्ष की उम्र में इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन देखा आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो चुके हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी अपने कंधों में बिठा लिया और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जब इस पहाड़ की मुकम्मल बुलंदी पे आखिरी पे ये चोटी है जिसका जहाँ पे गार मौजूद है, गार सौर इसका नाम है, और जब अभी हम जाएंगे देखेंगे तो इस इधर के गार पे जब करीब जाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ रखिए, पहले ये गुलाम अंदर जाएगा, गार का इंतजाम करेगा, फिर आप तशरीफ आइएगा। गार के अंदर जाते हैं, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं गार मिट्टी से भरा हुआ है और उसमें सुराख भी काफ़ी मौजूद है। अपनी दस्तार पगड़ी वाला कपड़ा उतार लेते हैं, उसी गार की सफाई करते हैं सारी, और उसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पत्थर लपेट कर वो सुराख बंद करते हैं। उसके बावजूद कुछ सुराख रह जाते हैं तो अपनी कमीज भी उतार लेते हैं, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर उसी में छोटे छोटे पत्थर लपेट कर वो सुराख बंद करते हैं। फिर भी एक सुराख बाकी रह जाता है तो उसके आगे अपनी पाँव की एड़ी लगा कर बैठ जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तशरीफ लाइए, तो सब्र करें, मोहब्बत का आलम देखिए, अंदाजा करें मोहब्बत का आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ लाते हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप थके हुए, आप लेट जाइए, आप आराम कीजिए। अंदाजा करें कि ज्यादा कौन थका हुआ है, अपने कंधों में उठाकर ऊपर लेके जा रहे हैं और इतना इंतजाम कर रहे हैं, फिर भी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप थके हुए, आप लेट जाइए, आप आराम कीजिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में रखकर लेट जाते हैं। नींद आ जाती है। कुछ रिवायत में आया है एक मूजी जानवर जिसको सांप भी बोला गया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाँव की एड़ी पे डसना काटना शुरू कर देता है। कुछ रिवायत में आया कि वो भी रास्ता मांग रहा था ज़ियारत करने के लिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता तो चल चुका था, उसे पता था, इल्म था कि यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। वो कई अरसा हजारों साल पहले का डेरा लगाया हुआ था उसने तो, लेकिन उसी ने वो रास्ते बनाए थे, तो सारे रास्ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बंद कर दिए। एक रास्ता जो बचा तो उसके आगे पाँव की एड़ी लगा ली और उसी रास्ते में वो अंदर आता है तो डंग मार रहा है थोड़ा थोड़ा ताकि रास्ता मिल जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़ के आखिर कौन हो सकता है? अपना पाँव नहीं हटा रहे और डंग पे डंग खाई जा रहे हैं, जख्म बढ़ता जा रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है। उसी तकलीफ बढ़ जाने से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर गिरते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो जाते हैं। देखा कि अबू बकर रो रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गम न कर, अल्लाह ताला के हुक्म से हम हिजरत के लिए जा रहे हैं और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा माल असबाब हजारों दफा आप पे कुर्बान, मैं किसी गम की वजह से नहीं रो रहा। ये तो इस मुझे जानवर के काटने से डसने से तकलीफ बढ़ गई तो आंखों में आंसू आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पाँव का जख्म काफी गहरा हो चुका है, रंग नीला पड़ चुका है पाँव का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पाँव अपनी गोद मुबारक में रख लिया और अपना लुआबे दहन लगा दिया। जख्म इस तरह साफ हुआ जैसे कभी तकलीफ आई। इसी
طرح 3 दिन और 3 रातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के ऊपर गारे सोन में गुजारते हैं। इसको सहरोज़ा बोला गया। सहरोज़ा समझते हैं 3 दिन का जो सहरोज़ा होता है, ये 3 दिन का सहरोज़ा पहला आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर यानी कि मुकम्मल किया। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर आते हैं, देखा जब उस वक्त तो अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी जब अंदर आती है तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर के बदल में कमीज भी नहीं है, सर पे दस्तार पगड़ी भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर ये आपके कपड़े कहाँ गए, क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये देखिए ये जो इतने सुराख थे सारे तो मैंने इसी कपड़ों से बंद किए हैं, और ये सुराख बाकी बचा था उसके आगे पाँव लगाकर बैठा हुआ था ताकि कोई जानवर आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हो गया, तू भी अबू बकर से राजी हो जा। जिस तरह ये दुनिया में मेरे साथी हैं इसी तरह जन्नत में भी मेरे साथी बना दे। और उसी वक्त हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हाजिर हो गए। अल्लाह ताला का पैगाम सुना दिया कि ए नबी, इसी तरह जिस तरह ये दुनिया में आपके साथी हैं इसी तरह जन्नत में आपके साथी होंगे, इसी तरह आपके साथ रहेंगे। अब पहुंच चुके हैं जबल सोर। अभी गाड़ी भाई पार्किंग करते हैं तो हम नीचे उतरेंगे। सभी भाई आज साहिबान से गुजारिश है कि मेरे साथ एक ग्रुप की शक्ल में आपने नीचे उतरना है। हमने पहले जो ज़ियारत करनी है मेरे साथ रहना है, और इसी तरह वापस जब आएंगे तो इन्हीं सीटों पे आकर बैठिएगा ताकि कोई लड़ाई झगड़ा बदमानी ना हो। इंशाल्लाह अगली ज़ियारत की तरतीब इसी तरह जारी रहेगी। कोई नहीं अल्लाह ताइफ तक ही प्रोग्राम नहीं, सुबह नहीं, असली तो सुबह मदीने जा रहे हैं, 3 ਨੂੰ वापसी आई फिर वापसी चली बाद जुमे तो अलावा रोजाना नहीं, जुमे तो अलावा चलना इंशाल्लाह इकट्ठे आ जाते हैं। बात करता हूँ करीब आते हैं सारे इतने एक जगह से खड़े कर लो। आगे मेरे करीब आ जाए। अच्छा अभी जरा मेरे पास आ जाए, थोड़ा सा आवाज़ आ जाएगी आपको सभी को। अभी आगे कर दीजिए। जी मोहतरम हाजी साहिबान तवज्जो कीजिएगा, हमारे बिल्कुल सामने एक बुलंद व बाला सबसे ऊंचे वाला जो पहाड़ मौजूद है इसका नाम है जबल सौर। जबल का मैनी होता है पहाड़, और यानी कि सौर का मैनी है बेल की कुहान के जैसा। जैसे बेल की कुहान नुमाया होती है इसी तरह इस पहाड़ की शक्ल है, और इस पहाड़ का नाम इसी वजह से जबल सौर है। और इसी के पहाड़ के ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर आपको 2 पत्थर नजर आएंगे, एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर। इन दोनों पत्थरों के दरमियान में वो गार मौजूद है। इस गार के अंदर आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा खानदान, पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ है। इस तरह के मैं गाड़ी में भी बता रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से तशरीफ ले आते हैं तो मुशरिकीन मक्का तो बाहर मौजूद है। इन लोगों ने तो बाहर रहने के नाका लगाया हुआ है, उन्होंने तो नहीं इलम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं। अब वो बाहर खड़े खड़े इंतज़ार करते करते जब उनका सब्र का माना ख़त्म हो जाता है, लबरेज हो जाता है, तो इन लोगों ने मशवरा किया कि यार देखे अंदर है भी है या नहीं है। तो इन लोगों ने अचानक
یہ कि मशवरा करते ही हमला करते हैं। तो सब्र करें उस वक्त के आलम का, एक आदमी लेटा हुआ हो, इतने आदमी अचानक हमला कर दे तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शेरे खुदा हैदर करा यकीन के साथ लेटे हुए हैं कि आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सुबह मदीने लौट कर आना है। तो इसी वजह से उन्होंने मुशरिकीन मक्का जो अंदर आते हैं उन्होंने सवाल किया, अली इस बिस्तर में तेरा क्या काम, इस बिस्तर में तो मोहम्मद अरबी होना चाहिए था, जैसे कि पहले बातें कर रहे थे कि उनकी आज आखिरी याद है, उनकी आज खैर नहीं। तो इन लोगों ने फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि अगर अब मैंने सच बोला तो मेरे नबी की जान को खतरा है, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे ईमान को खतरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सोच कर दुआ देते हैं भाई इधर जाना तो चले गए। उन लोगों ने सोचा ये क्या जवाब मिला हमें, तो दोबारा सवाल करते हैं अली ये क्या जवाब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा यही कलमात कराते हैं कि भाई जिधर जाना था चले गए। अब इन लोगों ने सोचा यहाँ से और कोई जवाब तो नहीं मिलेगा, तो इन लोगों ने दोबारा अपने सरदार के पास जाते हैं। दोबारा बड़ी मीटिंग होती है और इसी सरदार अबू जहल इनके 100 सुरख ऊँट इनाम में रख दिए कि 100 सुरख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे जो जिंदा या मुर्दा नौज़ बिल्लाह आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढ कर ले आएगा। तो इन लोगों ने यानी कि उस वक्त का एक ऊँट भी बड़ा कीमती ऊँट हुआ करता था। अब 100 सुरख ऊँटों के इनाम के लालच में इन लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया और यानी कि ग्रुप बना लिए, साथ में खोजी रख लिए, साथ में तरतीब लगा ली, खोजी जो कदमों के निशान पहचानने वाले साथ साथ लेकर वो आ रहे हैं कदमों के निशान पहचानते हुए। अब यानी कि जैसे ही पहाड़ के करीब आते हैं तो इन लोगों ने देखा कि अब तो एक आदमी के निशानात हैं, परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन शातिर लोग हैं, उन्होंने सोचा कोई एक आदमी चलो ऊपर गया है, देखते हैं कौन ऊपर गया है, उनमें से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि जाके आखिर में बिल्कुल जब चोटी के सामने आते हैं, गार के सामने, तो अंदर से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखकर पहचान लिया उनकी पाँव को और गवार करते हैं या रसूलल्लाह ये तो हमारे इतने करीब आ गए, ये तो हमें कदमों के निशानात से पहचानते हुए अंदर भी आ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये कुरान पाक में भी आयत उतरी है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, हम कोई अकेले तो नहीं है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही हुक्म दे दिया था मकड़ी को, मकड़ी ने जाला बुन दिया और कबूतरों ने अंडे दे दिए, कबूतरों का एक जोड़ा आगे बैठ गया। अब जो पास पहुँचे आपस में बातें करें, यार देखिए इस गार के अंदर ना गए हो। दूसरे कहते हैं बेवकूफ़ है तो इस गार के अंदर कैसे जा सकते हैं, ये जो जाला बुना हुआ है जैसे 40-50 साल पुराना हो, जैसे ये कबूतर आगे बैठे हुए, इनके अंडे आगे पड़े हुए, ये अंदर नहीं जा सकते। इस तरह बातें करते करते आगे गुजर जाते हैं। अंदाज़ा करें अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की हिफाजत, दुनिया का कमज़ोर तीन घर होता है मकड़ी का जाला और दुनिया का कमज़ोर तीन ये परिंदा कबूतर। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से कोई भी काम ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने इन कमज़ोर चीज़ों से काम ले लिया और आप की हिफाजत फरमा दी। और इसी तरह इन कबूतरों का ये भी काम था, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ये